Okay, students. Here it is. We had completed vegetative propagation yesterday. Asexual reproduction खत्म हो गई है. Today we are going to start with sexual reproduction in plants. क्या होती है सेक्सुअल? लुक फॉरवर्ड, अदरवाइज लीव द क्लास. लुक फॉरवर्ड. क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर इन्वॉल्व? एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल? ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर इन्वॉल्व? इन केस ऑफ प्लांट्स, which are the reproductive parts? कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं? They are the flowers. Flowers are the reproductive parts of the plant. क्या है? Note down. Flowers are the reproductive parts of the plant. एक term होती है बेटा, that is flowering plants. Flowering plants. कौन से होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स? द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स, उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उन्हीं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जिनमें फ्लावर्स होंगे, because flower is the reproductive part of the plant. Clear हो गया मैंने क्या समझाया अभी आपको? The plants that have flowers, they are called flowering plants, and sexual reproduction is the characteristic of flowering plants. Is this clear? Then flower के reproductive organs कौन से हैं? The reproductive organs of flower are stamen and pistil. पूरा फ्लावर नहीं, सिर्फ स्टेमन और पिस्टिल जो है, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर. गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब हमने पहले डिस्कस करना है स्टेमन और पिस्टिल क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होती कैसे है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी स्टेमन. स्टेमन लिखिए. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. इट हैज टू पार्ट्स. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ये वैसे 6th में आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है. It has two parts, anther and filament. The swollen tip of stamen is called anther. The swollen tip of stamen is called anther. Swollen tip, swell. The swollen tip of stamen. कॉपी कहाँ है? भाई ये संभालते फिरोगे? The swollen tip of stamen is called anther. The stalk-like structure is called filament. The stalk-like structure is called filament. The swollen tip of the anther. The swollen tip of stamen is called anther. And
and the stalk-like structure is called filament. Anther contains pollen grains. Anther contains pollen grains. अगर आप एंथर को खोलते हो तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है. If you cut open the anther, you will see such structure. Pollen grains are present inside the anther. And these pollen grains, they contain male gamete. लिखिए, very important. Pollen grains contain male gametes. इन pollen grains के अंदर male gamete होता है. Pollen grains contain male gamete. These are yellow colored powdery substances. Pollen grains क्या होते हैं? Yellow colored powdery substances. Pollen grains are yellow colored powdery substances. पाउडर की शेप, पाउडर जैसे बिल्कुल क्रश्ड. हाँ जी, गॉट इट? हो गया? ड्रॉ दिस, ड्रॉ करो. These are pollen sacs. These are pollen grains. When you cut open the anther, done ji? Draw it. Then pistil is the female reproductive part of plant. Pistil is the female reproductive part of plant. It has three parts: stigma, style, ovary. Ovary contain ovules. Write down. रमनदीप सिंह, आपकी क्लास नहीं है अभी. Suhana, please take the screenshot. Is Suhana here? Bhavya, you call me in the evening. Suhana, you also. Students of Science and Maths Club, call me in the evening. हाँ जी. Done. Stigma is, pistil is female reproductive part of flower. It contains three parts: stigma, style, ovary. Stigma is the sticky part. Stigma एक चिपचिप करता हुआ पार्ट है. Stigma is the top sticky part of pistil. ऊपर का sticky सा पार्ट है stigma. Stigma is the top. ये क्या बनाया है? क्रॉस मार दूंगी 1 मिनट में मैं. Stigma is the top sticky part of pistil. Stigma is the top sticky part of pistil. Middle part of the pistil is called style. Middle part of the pistil is called style.
It connects stigma and ovary. It connects stigma and ovary. The swollen part at the bottom, the swollen part at the bottom of a pistil is called ovary. The swollen part at the bottom of pistil is called ovary. Ovary contains ovules. Ovary contains ovules. Each ovule contains one female gamete called egg. Each ovule contains one female gamete called egg. जो फीमेल गैमीट होता है उसको क्या बोला जाता है? एग. 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 आई एम रिपीटिंग अगेन. ये जिसका रह गया है, इट इज द stigma is the top sticky part of pistil. Middle part of the pistil is called style. Rishita. It connects stigma and ovary. The swollen part at the bottom of pistil is called ovary. Ovary contain ovules. Each ovule contains one female gamete called egg. E-double-G, egg. जो फीमेल गैमीट होते हैं, they are known as egg. Got it? ड्रॉ करो डायग्राम को. हरी अप. उसके बाद करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. कहाँ खत्म हो गई? अभी तो शुरू भी नहीं हुई. अभी मैकेनिज्म करना है. इसके बीच में टॉपिक है यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं. Got it? Note it down. Any doubt up to this you can ask me. चलिए इसको इरेज करने वाली हूं. लेट अस ड्रॉ फ्लावर. पहले फ्लावर ड्रॉ कर लो, सिंपल फ्लावर. उसके बाद यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पे आते हैं. आपने किया होगा पिछली क्लास में, फिर भी ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए. अच्छे से ड्रॉ करना, नीट. तभी सिक्स्थ में हम इतना जोर लगा लगा के ये सारा कुछ करवाते हैं ताकि सेवंथ में आपको तंगी ना हो, इजी हो जाए. क्योंकि अभी पॉलिनेशन करनी है, हमने ऐड ऑन कर देना इसमें. पॉलिनेशन विल बी देयर. पूरा मैकेनिज्म आएगा रिप्रोडक्शन का, उसमें आपको परेशानी आती है. ठीक है, ये किया हुआ है इसीलिए समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो इसी में पूरा एक पीरियड स्पेंड हो जाए. चलिए लेट अस ड्रॉ फ्लावर. एलएस फ्लावर ड्रॉ करते हैं. यू वर देयर लास्ट टाइम. ये चैप्टर एंड में था, अब ये हमने मिडिल में करा हुआ है. This is pedicel. This is sepal. एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने सिक्स्थ में करवाई हुई है. This is thalamus. This is petal. Here we will be drawing pistil.
राइट अब इसको लेबल करो, एंथर फिलामेंट। किसके पार्ट है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन। नाउ फीमेल स्टिग्मा, स्टाइन, ओवरी। ये किसके पार्ट्स हैं? पिस्टल के। गॉट इट? हाँ जी साइड पे हूं, ड्रॉ इट, नो वरीज। सुंदर बनाओ, गंदा गंदा काम नहीं करना। ड्रॉ नीटली, नो पेंसिल यू हैव। कहाँ बनाई है ये? वेयर आर द सेपल्स? ये ओवरी हवा में है? दोबारा ड्रॉ करने तो मैं इसको डस्टबिन में फेंक देना। हरी अप, ड्रॉ इट। नहीं, वो हमने पहले कर लिया, अगर आपको पूछा जाएगा तो आप दिखा देना, हमने समझा दिया सारा। पेपर में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कोई बात नहीं, बनाओ, डू इट। डन, करो करो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सुहाना, लेट अदर्स डू, हियर स्टूडेंट्स आर स्टिल डूइंग। सिट डाउन, डोंट कम टू मी।
हाँ जी, होपफुली इट इज डन. नो डन. शैल आई रेज दिस? बच्चे, देयर आर two types of flowers based on the reproductive parts present in flower. They are unisexual flowers or you can say incomplete flowers. Another category is bisexual flowers. अर्जुन इधर आ जाओ. स्टार्ट हियर. छोड़ दो उसको. Bisexual flowers or complete flowers. हाँ जी, भव्या करवा रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Based on the type of flowers, based on the presence of reproductive parts. ठीक है? Uni means one. Bi means two. Clear from the names. As indicated by the names, it contains unisexual flowers. They contain only one organ, either male or female. या तो स्टेमन होगा इनके अंदर या पिस्टिल होगा. ओनली वन ऑर्गन इज प्रेजेंट. हमने अभी जो डायग्राम करी थी उसमें दोनों थे एक ही फ्लावर में. ठीक है. यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? दे कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन. या तो स्टेमन होगा, मेल ऑर्गन होगा, या फीमेल ऑर्गन होगा. गॉट इट? In case of bisexual flowers, two sexual means sexes, two reproductive organs, right? They contain both male and female in one flower. Stamen और pistil दोनों एक ही फ्लावर में होंगे. क्लियर? जो यूनिसेक्सुअल है जिनमें एक ही है दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. जो बाइसेक्सुअल है दे आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स. छोड़ दो इसको. एग्जाम्पल है इनकी है पपाया, वाटरमेलन, बिटर गोर्ड, ठीक है, करेला, पंपकिन, ककम्बर वगैरह. और इसमें आते हैं रोज, मस्टर्ड, लिली. हाँ, ये किया था. ठीक है जी. चाइना रोज जिसको आप हिबिस्कस भी बोलते हो. डू इट. नोट इट डाउन. हरी आप. टुडे वी विल बी डूइंग अप टू दिस. बेल होने वाली है. कल हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग मैकेनिज्म. उसमें पॉलिनेशन आती है, फर्टिलाइजेशन आती है. दैट वी विल बी डूइंग. अलग अलग तरीकों से होती है, वो भी हम करेंगे. ओके भव्या. टुमारो इज संडे. वी विल डू डे आफ्टर टुमारो. गॉट इट? कल आपकी क्लास नहीं लूंगी. कल मुझे भी सोना है. क्या क्या वीडियो? किसकी? मैं तो आज जाके सो जाऊंगी. कल छुट्टी है. यस, कंप्लीट इट. कुछ नहीं करेंगे.
हाँ